So hi Cat 2022 aspirants. So as you all know that I am a mentor at Habitat app and I take sessions. I try to motivate people and try to solve any queries that you guys have. So if you have any query, then you can join my session. That's totally free. Like I will be taking sessions every Saturday. So you can just join Habitat app and my space. The link is on the description and you can see the next video which I've recorded, that whatever questions that aspirants asked, maybe it can be helpful for you. So do join my Habitat space link. Keep shining and all the best. So hi everyone, welcome to the Habitat one-on-one, not the one-on-one session, but yes, it's a group session, free Zoom meeting. So here will be you guys, whoever have any queries, you can shoot your queries right now, and I will be trying to solve all those questions. I hope Habitat is helping you in some of the way. And this is just one of the initiative that we guys have taken to interact with you guys in the weekend. So abhi मैं free था, so that's why I thought let's have an interaction with you. And yeah, so okay, Piyush, you can go ahead with your questions. भैया सबसे पहले आप अपना ये एकेडमिक्स मतलब बता दीजिए ना, थोड़ा स्कोर किया था आपका 10th 12th और मतलब ग्रेजुएशन और मतलब Okay. कैट परसेंटाइल। Okay, so basically, since I am from IMK and we are not, like, unless and until we get placed, we are not allowed to reveal our percentile. I can say my profile. So I am coming from an NCOBC category. My 10th score is 92% with an ICSE board. 12th score is 85% with science stream, and I done BCom graduation. I'm a BCom graduate student from Delhi University, and I had 8.2 CGPA. So this is my score, like 92, 85, and 8.2. And I am a non-engineer, as you all know. So yeah, this is my academic score. Any other question? और भैया मतलब कि क्वेश्चन बनाते हैं तो मतलब कि मतलब कैट में वही क्वेश्चन आता है कि मतलब उसी आधार पर आता है, मतलब कुछ बताइए थोड़ा। So basically, there are three sections, as you all know, that quant, LRDA, or VRC. So there is हाँ, no वो सब बस वो सब पता है, मतलब कि जैसे हमको पूछना था ना कि मतलब जैसे कोई क्वेश्चन होता है ना, तो मतलब क्वेश्चन मतलब किस आधार पर मतलब कि आता है, मतलब कि जो प्रैक्टिस करते हैं उसी आधार पर आता है कि मतलब कोई डिफरेंट मतलब कि आता है नहीं मतलब। नहीं, कुछ डिफरेंट तो नहीं आता। सेम ही जो तुम पढ़ाई करोगे, जो भी सिलेबस, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम फॉलो कर रहे हो, उसी के बेसिस पे आता है। तो मॉक्स जरूर देना। लाइक देयर आर थ्री इंस्टीट्यूट, टाइम, आईएमएस और सीएल। इन तीनों का मॉक बहुत अच्छा है। तो मेक श्योर दैट यू गाइस एटलीस्ट बाय वन ऑफ द मॉक सीरीज ऑफ एनी दीज थ्री इंस्टीट्यूट। एंड इस मॉक में तुम्हारा जितना स्कोर आता है, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा उतना तो आ जाएगा, और 10-15% या 20% ज्यादा भी आता है। So just try to focus on any of the mock series that I've said, time, IMS or CF. कोई और क्वेश्चन? अब भैया प्रोफाइल के लिए कोई सोच। पीयूष, यू कैन म्यूट योर कैमरा और म्यूट योर माइक। क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी मैं अंकुश का आंसर करता हूँ। ठीक है, तो अंकुश ने पूछा है कि डू यू गाइज नीड टू डू एनीथिंग फॉर योर प्रोफाइल? So yes, you should do at least do some internships, do some project, live project, not for the sake of interview, IM interview, but for the placement. So once you get into IM, you will be placed within a month. तुम्हारा एक महीना में प्लेसमेंट हो जाता है। सो उस समय तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि तुम जाके वापस इंटर्नशिप करो या लाइव प्रोजेक्ट करो या फिर कुछ और करो। So make sure that you guys have enough thing to put on your CV. Like I am coming from Delhi University, so in Delhi DU में हाँ, क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन, ये चैट वैट नहीं करूंगा, ठीक है? चैट वैट में इट्स लाइक कि दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, सो मेनी अदर पीपल विल आल्सो गेट सम बेनिफिट थ्रू दिस। सो चैट वैट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है? यू कैन आस्क यू क्वेश्चन, डोंट वरी। हाँ, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ ना। सो द थिंग इज कि so make sure that you guys do internships, do live projects. I am coming from DU, so DU में बहुत सारे societies होता था, so I was a member of 7 to 6 societies in my college. So वो एक फायदा क्या था मेरे को, POR होना जरूरी है। एज अ फ्रेशर यू नीड टू हैव POR। POR
PR is पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर वो होता है तो अच्छी चीज है। अदर देन दिस कुछ मत करना, ये नहीं कि सर्टिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है, नहीं, मतलब नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस मेक श्योर दैट यू आर डूइंग समथिंग which is giving you knowledge and at the same time enhancing your CV as well. So you can be a member of NGO, you can NGO join कर लेना, you can turn on your camera. Guys, everyone except you, please turn on your camera, it will be a good interacting session then. ठीक है, so ये था। और कोई क्वेश्चन अंकुश? I think this was helpful. अभी आपका आपने जो भी वर्किक्स है? नहीं, मेरा 2021 में ग्रेजुएशन खत्म हुआ है और अभी मैं यहाँ पे। ओके भैया, आपका कौन सा बैकग्राउंड है, जैसे कि अंदर जाने के बाद चूज करना पड़ता है मार्केटिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग वगैरह वगैरह, तो आपका कौन सा? IIM में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, सो ये एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएट हुआ है, मतलब है कि यू हैव टू चूज एनी स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। यस, एक इलेक्टिव चूज करना पड़ता है इन सेकेंड ईयर, तो इलेक्टिव तुम्हारी मर्जी होती है तुम्हें क्या रखना है। सो देयर आर पीपल हु टेक जस्ट मार्केटिंग सब्जेक्ट्स, देयर आर पीपल हु जस्ट टेक फाइनेंस सब्जेक्ट, देयर आर पीपल हु टेक मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग मार्केटिंग का सब्जेक्ट ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन किया है। एट दी एंड IIM में आपका कहीं पे भी प्लेसमेंट हो सकता है। सो अगर तुम IT बैकग्राउंड से आते हो और शायद तुम्हारा HR में प्लेसमेंट हो जाए, तुम बायोलॉजी पढ़ के आए हो ग्रेजुएशन में और तुम्हारा IT में शॉर्टलिस्ट आता है और IT कन्वर्ट भी हो जाता है, तो ऐसा कहीं कुछ लिमिटेशंस नहीं है। दैट्स व्हाट वी सेड, दैट like they just see like any of the companies who come in our campus, they just see your confidence, your way of speaking, your CV, and that's it, because they also know that within 6 months they will be giving some trainings and you guys will be up for that. So they don't need कि एक specific कोई limitation या फिर CS या कुछ ऐसा कुछ होना जरूरी। So anything which मतलब कोई भी बैकग्राउंड का कहीं भी कुछ भी हो सकता है। That's the thing. एक मिनट में चैट में क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ एक बार, ठीक है। यू ऑल हैव जस्ट 15 मिनट्स, ठीक है। आपने कौन सी कोचिंग की थी? सो मेरा कोचिंग थोड़ा सा ज्यादा था, मतलब इधर उधर था। लाइक आई वाज ए काइंड ऑफ पर्सन हु हैड गुड मतलब फ्रेंड्स, सो आई यूज्ड टू शेयर माय कोचिंग विद अदर पीपल एंड दे यूज्ड टू शेयर विद मी। सो आई डिड माय कोचिंग फ्रॉम MBA गुरु, ठीक है। I won't be saying कि कौन अच्छा है कौन खराब है, because this will be going in the YouTube, so I will just be saying my names, ठीक है, those names। MBA गुरु से किया था मैंने, अनअकैडमी से किया था, एलाइट्स ग्रिड से किया था, तक्षशिला से किया था। अब सबसे मैं नाम बोल रहा हूँ बट सबसे थोड़ा थोड़ा किया था। तो मैंने एलाइट्स ग्रिड से, मेरे को मैथ्स बहुत पसंद था, मैथ्स और LRDA बहुत अच्छा था, मैंने वो किया। तक्षशिला का मैथ्स बहुत ही अच्छा है, मतलब क्वांट बहुत ही अच्छा है, तो मैंने वो किया। अनअकैडमी का मेरे को LRDI रवि सर का और क्या नाम है VRC शवाना मैम, अभिलाषा स्वरूप और हिमांशु सर, करिश्मा मैम, ये सब बहुत ही मेरे को पसंद, मतलब ये पर्सनली मेरा फेवरेट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी यही कर रहे हो, तो मेरा ये सीन था। अदर देन दिस आई ऑल्सो टुक लाइक नॉट कोचिंग, बट हाँ मैंने एक वो खरीदा था, क्या नाम बोल रहा हूँ। सो देयर वाज एन अर्बन प्रो, एक वेबसाइट करके है शायद। सो इफ यू गाइज गो एंड चेक इन वेबसाइट या फिर ऐप में, तो मैं क्वांट के लिए फैकल्टी चूज कर रहा था। तो वहां पे भी मैंने एक टीचर से पढ़ा था, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा, बट मैं देखता हूँ, याद तो नहीं। सो मैं उनसे इस पर उन्होंने अनअकैडमी में पढ़ाया, तो एक बार मैं बता दूंगा कभी, या आई विल बी मेकिंग अ वीडियो फॉर दैट, सो मैं बाद में बताता हूँ। तो ठीक है, ये सारी मेरी कोचिंग्स थी। Next is, hey, please suggest a good timetable or something so that I can be more consistent towards my preparation, as I am not practicing religiously. So what should I do to avoid inconsistency, and how can I remain motivated throughout the process on my prep? Too many questions in one question. Okay. So the first question is, suggest a good timetable. ठीक है, अब टाइम टेबल मैं यही बताऊंगा कि बेसिकली यू हैव टू गो थ्रू ऑल द 3 सेक्शंस एटलीस्ट, मतलब नॉट पर डे, बट गैप नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 1 or 2 days इन ईच सेक्शन। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडीइंग क्वांट एंड LRDI टुडे,
तो कल तुम वीआरसी जरूर पढ़ना। ये नहीं कि आज क्वांट एलआरडीआई पढ़े और कल भी क्वांट और एलआरडीआई ही पढ़े, वो मत करना। मतलब 2 सेक्शन पर डे तो तुम्हें टच करना ही करना है, ये तुम्हारा एक अच्छा टाइम टेबल हो सकता है, ठीक है। एंड मैंने जो टाइम टेबल बनाया था मैं तुम लोग को भेज दूंगा हैबिटेट में, सो यू कैन सी दैट। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम एग्जैक्ट वही बना लेना, तुम आप अपने से थोड़ा सा चेंजेस करके तुम्हें जिस टाइम पे कंफर्टेबल फील होता है वहां उस टाइम पे अपने हिसाब से पढ़ना। मैं जनरली रात में पढ़ाई करता था, तो मैं अपना टाइम टेबल डाल दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड आई डू टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज यस ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, 6 7 8 10 महीने का प्रोसेस होता है। तो मतलब ऐसा होता है कि 1 महीना पढ़ने के बाद मन हट जाता है। सो उस समय आपको ये करना है कि आपने स्टार्ट किस लिए किया तो वो कर सकते हो। आप अपने ड्रीम कॉलेजेस को देखो यूट्यूब में। सो फॉर एग्जाम्पल माई ड्रीम कॉलेज वॉज IIMK, so I used to watch those videos and that motivated me to work even more harder. So you can watch my vlogs, ठीक है। अगर तुम्हारा IIMK का ड्रीम है तो ये मेरा व्लॉग्स देखो, मैंने काफी अपलोड किया, इतने सारे वीडियोस के। एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड ब्लॉग जरूर देखा करो, बहुत हेल्पफुल होता है, नॉट जस्ट माइंड, एनीवंस, जिनका भी मन कर रहा है देखो। एंड थोड़ा अपने आप में पॉजिटिविटी रखो। मे बी तुम भगवत गीता खरीद सकते हो, बुक 300 400 रुपए का आता है, बहुत ही फायदा करता है वो चीज। तो एटलीस्ट 1 पेज ही पढ़ोगे ना तो तुम्हारा वो मोटिवेशनल या फिर स्पिरिचुअल भी बनता है, वो कर सकते हो तुम। एंड मेक श्योर दैट यू do something which makes you happy. So I used to watch तारक मेहता का उल्टा चश्मा एवरी डे। सो ये सब चीज ऐसा चीज करो जिससे तुम्हें मजा आ रहा हो। तो मतलब तुम ना मेहनत करो और फिर तुम अपने आप को रिवॉर्ड दो। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने दिन भर मेहनत किया, तो मैं रात में 8:30 बजे तारक मेहता का जरूर देखता था। अभी कभी कभार देखता हूँ, इतना टाइम तो नहीं है, बट हाँ, तो मेरा काइंड ऑफ रिवॉर्ड मेरे को, मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो रात में मैं मजे भी कर रहा हूँ। तारक मेहता देखता था, फिर कभी मन किया कुछ मूवीज देख लिया। तो मूवीज जरूर देखो, वेब सीरीज देखो, और तभी देखो जब तुमने कुछ किया है, मतलब तुमने पढ़ाई किया तब देखो। अगर तुमने नहीं किया तो तुम मत देखो, वरना वो गलत चले जाएगा, ठीक है। तो ये है कि मतलब अपने आप को खुश भी रखो, मतलब मेहनत कर रहे हो तो अपने आप को रिवॉर्ड, ये इससे तुम काफी कुछ गेन कर सकते हो, ठीक है। हेलो हेलो भैया भैया हाँ। भैया अर्थमेटिक सेक्शन में मतलब एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन आप बनाते थे, मतलब थोड़ा हिंट बताइए। तो अरिथमेटिक सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है या फिर टॉपिक है क्वांट में। अगर 24 क्वेश्चन होता है तो 24 में से 10 12 क्वेश्चन आते हैं। तो मेक श्योर कि हर चैप्टर जो होता है, जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, या फिर मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस हो गया, ये जितने भी चैप्टर्स है सबको मिनिमम नहीं भी तो तुम्हें एक एक हफ्ता तो देना चाहिए, ठीक है। एक एक हफ्ता एटलीस्ट, और एक हफ्ता इज इनफ आई गेस। तो एक हफ्ता जरूर देना तुम लोग। एंड कितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तो ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, बस ये है कि तुम नया नया क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो फॉर एग्जाम्पल तुम टाइम से कोचिंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने टाइम का सारा खत्म किया, उसके बाद तुमने मॉक खत्म किया, उसके बाद तुमने पिछले साल का जितना भी मॉक पेपर्स था वो खत्म किया, फिर कैट का क्वेश्चन पेपर्स है वो खत्म कर सकते हो। तो इतने सारे जब कर लोगे ना, तो ऐसा कोई सेट नहीं है कि तुम नहीं 1000 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम सेट हो जाओगे। नहीं, पहले तुम तुम्हारे कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, उसके बाद अदर थिंग्स में जाओ। अदर थिंग्स मॉक में जा सकते हो, प्रीवियस ईयर मॉक में जा सकते हो, इस साल के मॉक में जा सकते हो, कैट के क्वेश्चन पेपर्स में जा सकते हो। तो ये सारी चीजें करो, और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट का पढ़ो। तुम लोग हैबिटेट में ऑलरेडी हो तो हैबिटेट में आपस में ग्रुप बना के तुम लोग कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल पीयूष के पास टाइम का कोचिंग है और अंकुश के पास सीएल का कोचिंग है, तुम लोग आपस में अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर करके पढ़ो। तो तुम्हारे पास, लेकिन तभी पढ़ो जब तुमने खुद का कोचिंग का पढ़ लिया है। तो मतलब सबसे पहले खुद का खत्म करो, अपने कोचिंग का, अपने जिससे भी तुम जिसको भी तुम फॉलो कर रहे हो, उसके बाद फिर कहीं जाओ, नहीं तो फंस जाओ। भैया मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी सर्टिफिकेट को लेके ही है। भैया मेरा दिसंबर को ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, तो कॉलेज से कोई इंटर्नशिप मिला नहीं है। तो आपको कोई मालूम है कोई प्लेटफॉर्म, तो सजेस्ट कर दीजिए भैया, क्योंकि मेरे को अभी तक नहीं मिला है, गूगल से कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशाला एक ऐप है, उसमें अप्लाई करते रहो। मैं भी अपना व्हाट्सएप में हैबिटेट में डालते रहता हूँ, आज भी मैंने डाला था वो एक बार चेक कर सकते हो। इंटर्नशिप बहुत आसानी से मिल जाती है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हें अप्रोच करने आना चाहिए लोगों को, दैट्स इट।
तो मेक श्योर यू ऑल, देखो 1 साल के बाद तुम्हें लिंक्डइन अकाउंट तो बनाना ही है एट एनी केस, तो आज ही क्यों नहीं बना लेते? जब सबके पास फोन है, लैपटॉप है, तो लिंक्डइन अकाउंट जरूर बनाओ। मेरे पास नहीं था, बट मेरा सजेशन तो यही होगा। तो लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, सबको अप्रोच करो, मे बी पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। पेड अनपेड फर्क नहीं पड़ता, बस ले लो और काम करो, सीख जाओगे। तो कोशिश करो कि अगर ऑफलाइन मिलता है तो वो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज काफी कुछ लर्निंग होती है। तो और जरूर एक्सेल जरूर सीखो, पीपीटी बनाना सीखो, कैनवा पे पीपीटी बनाना सीखो। कैनवा तो बहुत इजी है, पावर पॉइंट सीख सकते हो, बट एक्सेल जरूर सीखना। एक्सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि ये सब ठीक है चीज, भैया। एक्स्ट्रा चीज में ये सब कर सकते हो। अगर तुम लोग पूछ रहे हो ना कि एक्स्ट्रा में क्या करें, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू गाइस शुड फोकस ऑन। ओके, थैंक यू भैया। या लाइक अभी क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप में सेल्स का ज्यादा है और वर्क फ्रॉम होम है, और मतलब ऑफलाइन इतना है ही नहीं इंटर्नशिप्स के लिए, तो क्या करें ऐसे? हाँ तो ठीक है, ऑनलाइन कर लो ना, क्या दिक्कत है? ऐसा कुछ नहीं है। इंटर्नशिप इंटर्नशिप होता है, एंड एज अ आई गेस यू आर ए फ्रेशर, तो इफ यू आर ए फ्रेशर तो इंटर्नशिप तो करना ही होगा। बिना इंटर्नशिप का होगे तो यहाँ आके फिर दिक्कत होगा। तो बेटर है कि हाँ इंटर्नशिप। मतलब मेरा मेरा सीवी पूरा ब्लैंक ऐसा है, सिर्फ प्रोफाइल ही है और कुछ नहीं, और अभी सेकेंड ईयर में हूँ। और मतलब इंटर्नशाला में अप्लाई किया था तो ज्यादा से ज्यादा तो सेल्स का ही है, हम्म सेल्स एंड मार्केटिंग। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एज अ फ्रेशर यू शुड बी ओपन टू ऑल द डोमेन्स। यू शुड नॉट बी जस्ट स्टक टू फाइनेंस या सेल्स मार्केटिंग या फिर कोई, मतलब जो मिल रहा है ना करके उसको सीखो। क्योंकि हम सबको, मैं भी फ्रेशर हूँ, तो हम सबको सब कुछ सीखना पड़ता है। उसके बाद जब तुम्हारे पास बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, तब तुम रिजेक्ट कर सकते हो कि ठीक है मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ, वहां नहीं जा रहा हूँ। बट अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो अभी तो तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हारे लिए अ, अच्छा चीज है। तो मे बी तुम गो फॉर इट, मतलब जो मिल रहा है कर लो यार, बस दैट्स इट। पेड अनपेड फर्क नहीं पड़ता, बस करो, तभी सीखोगे। और कोई क्वेश्चन? वन लास्ट क्वेश्चन अंशु, आई विल बी कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन इन May दिस ईयर, डू आई स्टिल नीड टू डू एनी इंटर्नशिप और जॉब और समथिंग? So since you are completing your graduation this year, Hina, so what you can do is focus on CAT. CAT में अच्छा percentile लाओ, and just after the CAT, maybe after November, दिसंबर से तुम या तो जॉब पे फोकस कर लो या फिर इंटर्नशिप कर लो, कुछ तो करो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जॉब वुड बी बेटर ऑप्शन, बिकॉज उससे आपका गैप ईयर काउंट नहीं होगा, एंड दिस विल हेल्प यू इन इन प्लेसमेंट्स। सो ड्रॉप ईयर लेना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है। सो जस्ट ट्राई। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम ग्रेजुएशन के बाद तुरंत जॉब को अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं कर सकते हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरे से दोनों चीज मैनेज नहीं होगा, तो स्टार्टिंग में तुम कैट पे फोकस करो नवंबर तक। जिस दिन तुम्हारा कैट एग्जाम खत्म होगा, दिसंबर से तुम जॉब करना स्टार्ट कर दो। तो पहले से रेफरल या फिर पहले से कहीं पे भी अप्रोच करो, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने कजिन्स में, सिबलिंग्स में, मे बी कोई सीनियर्स में अप्रोच करो। दैट्स व्हाट आई सेड कि यू गाइस नीड टू हैव अ LinkedIn account which is very important and try to approach people because LinkedIn में बहुत हायरिंग आती है, बहुत हायरिंग आती है। तो LinkedIn में सबको रिक्वेस्ट भेज दो, तुम्हें खुद ब खुद हायरिंग आएगी, तुम सब में अप्लाई करते जाओ, सीवी बना के रखो, अप्लाई करो। ठीक है, मेरे पास भी अगर कुछ आता है तो मैं हैबिटेट में भेज दिया करूँगा। या वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस? बाय द वे, एनी सजेशंस फॉर हैबिटेट? कैसा लग रहा है ये प्लेटफॉर्म? कुछ भी सजेशंस, और मे बी अबाउट मी, मे बी फॉर द ब्लॉग्स, बोल सकते हो। एटलीस्ट कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट बोल तो सकते ही भैया मैं बोलना चाहूंगा, भैया आपका यूट्यूब चैनल जो था, हो। जब से आपने स्टार्ट किया तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और सच में ये मतलब अंदर से मोटिवेशन देता है, क्योंकि मेरा भी ये फेवरेट कॉलेज में से एक है IIM कोझिकोड। ओके, तो थैंक्स टू यू भैया। मोस्ट वेलकम ब्रो। कीप सजेस्टिंग मी सम ऑफ द टॉपिक्स दैट आई कैन मेक, और कोई भी कंटेंट तुम्हें जो तुम्हें पर्सनल मतलब बनाना चाहिए मेरे को एज अ यूट्यूबर, तो यू कैन जस्ट सजेस्ट मी ऑन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग ऑन दैट। श्योर भैया। अमीर नूर, आई एम नॉट हियरिंग एनी वर्ड्स फ्रॉम यू, कुछ भी बताओ। अभी आप बिहार में ही हैं भैया? ये मतलब केरला, मतलब अभी मैं कैंपस IIM में?
कैंपस में अच्छा। हाँ भैया, जैसा कि आपने बोला था पीपीटी आपको आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, तो कंप्यूटर का वहाँ पे कोई ज्यादा यूज होता है? कंप्यूटर का जैसे ज्यादा कंप्यूटर पे मतलब लैपटॉप को यस बहुत मतलब 24/7 तुम्हारा लैपटॉप और तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे साथ ही होगा 24/7, ठीक है। और बाई दिस आई मीन 24/7, इट्स नॉट लाइक कि इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग ना, यू विल गेट सम टास्क टू डू इन द नाइट, यू विल बी स्लीपिंग एट 4 or 5, ठीक है, इन द मॉर्निंग, दैट्स फॉर श्योर एंड दैट्स एवरीडे रूटीन। सो ये रहता है एंड यस बहुत हेक्टिक काम नहीं, मतलब काम हेक्टिक है बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। जैसे आईआईटी एनआईटी में बहुत ज्यादा आपको अलग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, हमारे यहाँ सिर्फ एक्सेल, पीपीटी और थोड़ा मोरा जो मतलब कॉलेज का जो वेबसाइट है वो सब, दैट्स इट। तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, मतलब नॉर्मल लैपटॉप भी खरीदोगे तो भी कोई इशू नहीं यार, एप्पल का भी खरीदोगे तो कोई इशू नहीं। It would be very helpful and great if you start solving some important concept of quants and LID on YouTube. So Hina, the thing is कि खुद सोचो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आईआईएम में एंड हमारा ऑलरेडी सुबह 9 से लेके शाम को 4 बजे तक क्लास रहता है, ठीक है, सुबह 9 से लेके शाम को 4 बजे तक। उसके बाद 4 बजे के बाद मेरा रूटीन है कि मेरे को जिम जाना है, मेरे को थोड़ा सा यूट्यूब पे भी ध्यान देना है, तो 1 घंटा यूट्यूब में जाता है, 1 घंटा जिम में जाता है, तो 6 बज गया। एंड उसके बाद दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है क्योंकि यू हैव टू बी सोशल एक्टिव ऑल्सो, ऐसा नहीं कि तो मैं बस अपने अंदर में रह रहा हूँ। सो आई हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, आई हैव टू इंटरेक्ट विद सीनियर्स, तो उनके साथ 1-2 घंटे जा मतलब बातें करना, और उससे तुम्हें भी लर्निंग मिलती है। उसके बाद फिर डिनर करना 8-9 बजे तक, फिर थोड़ा जैमिंग करना, बात मतलब होता है गप्पे शप्पे लगाना, जो भी एज अ स्टूडेंट जो हम लोग सब करते हैं, तो 10 ऐसे ही बच जाता है। उसके बाद फिर हमारा टास्क होता है, डेली टास्क होता है, इट्स लाइक कि वी गेट सम टास्क एवरी डे, वी हैव टू प्रेजेंट समथिंग और द अदर इन द नेक्स्ट डे, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। वो हो गया, फिर तुम लोग का काफी पर्सनल क्वेश्चंस होता है जो मेरे को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक में, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे आता है, तो सबको मैं रिप्लाई करता हूँ, उसमें मेरा 2 से 3 घंटा आराम से जाता है। तो इतना करने के बाद अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो मेरे से तो नहीं होगा यार, ऑलरेडी मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। कभी कभी तो लगता है सब छोड़ छाड़ दो, बट फिर लगता है कि नहीं यार, कर लो मेहनत। सो कॉन्सेप्ट तो जरूर नहीं हो पाएगा एकदम, ना है ना अभी होगा, मे बी इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग भी मेरे को नहीं लगता मैं इतना एफर्ट करूंगा, बिकॉज कैट इज लाइक टोटली डिफरेंट। यहाँ एमबीए में आके मैं कैट का बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे एवरेज पढ़ाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ या फिर परसेंटेज कर रहा हूँ या फिर एलआरडीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग, कैट इज जस्ट ए वे टू गेट इनटू आईएम। आफ्टर गेटिंग इनटू आईएम, ट्रस्ट मी, यू गाइस विल आल्सो फॉरगेट व्हाट यू हैव डन इन द लास्ट 6 months। तो यहाँ की एक अलग ही पढ़ाई चलता है, तो इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि उसे, मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट्स याद भी नहीं है, अगर तुम मुझे इजी क्वेश्चन भी दोगे ना भी, मैं शायद नहीं, आराम से नहीं बता पाऊंगा, शायद का मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा। बट इफ यू गिव मी फॉर ए मंथ, मतलब मैं प्रिपेयर करके बता दूंगा, बट कोई लॉजिक नहीं है, मैं इतना एफर्ट थोड़ी करूंगा यार, कोई नहीं करेगा यार, उनको अपना लाइफ भी तो देखना है। सो इट्स बेटर टू फॉलो टीचर्स, फैकल्टी जिन्होंने अपना 10 साल 15 साल पढ़ाई किया है, तो उन पे फोकस करो। सो IIM students will never solve, you never say any concept or never teach any concept in YouTube. It's not possible because बहुत ही hectic schedule रहता है, and you guys will get to know when you get IIM. भैया जब आप वहाँ पहला पढ़ाई बार होता क्या है? हेलो, क्या? हाँ मीनू, हाँ जब आप पीयूष। पढ़ाई कर भैया जब आप पहला बार पढ़ाई कर रहे थे तो मतलब कि सब कुछ समझ में आता था पूरा 100% की, मतलब कि थोड़ा कम ही, मतलब हमको तो लगभग में 40 से 50% ही आ रहा, मतलब हाँ हाँ, मतलब इसलिए यू हैव बताइए टू थोड़ा। स्टडी हर कॉन्सेप्ट को, कम से कम नहीं भी तो 3 से 4 बार तुम्हें वीडियो देखना पड़ता है। जब मैंने LIDI स्टार्ट किया था रवि सर का, तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है, तो मैंने मतलब 300-400 सेट करवाते हो, तो मैंने सारा वीडियो एज अ मूवी देखा था, मतलब मैं ना कॉपी रखा हूँ ना पेन रखा हूँ, बस देख रहा हूँ, मजे ही कर रहा हूँ। तो जब पूरा एक बार देख लिया 400 वीडियोस, तब मेरे ऑब्वियसली तुम्हें कुछ लर्निंग मिलती है। उसके बाद जब मैंने सेकेंड टाइम देखा, तब मेरे से थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो रहा था, और जब मैंने थर्ड टाइम देखा तब मेरे से पूरा सॉल्व हो रहा था। तो वैसे होता है, तो यू हैव टू स्पेंड टाइम इन ईच कॉन्सेप्ट, इन ईच क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं होता है कि तुमने 2 क्वेश्चन
देख लिया तीसरा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, ऐसा नहीं। मैंने 400 वीडियो देखा था बिना सॉल्व किए, बस मूवी लगा के, मतलब एज ए मूवी लगा के मैं बैठ गया और देख रहा हूँ, सो के देख रहा हूँ, लेट के देख रहा हूँ, खा के देख रहा हूँ, तो ऐसे करता था। उसके बाद जब मैं सेकेंड टाइम दोबारा स्टार्ट किया 1 वीडियो से, तब मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व करता था। तो ऐसे करके मैं भी सीखा हूँ, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सबके साथ ऐसे ही होता है। अमीनुर कुछ बोल रहा था आई गेस। हाँ सर, वीआरसी के लिए क्या करें मतलब ऐसे, मतलब वीआरसी में कुछ ही नहीं हो रहा है, जितना मॉक्स दिया है मतलब सब में नेगेटिव मार्किंग आ रहा है, उसको इम्प्रूव कैसे करें? तो मेरा भी भैया। वीआरसी के लिए ना सबसे देख, वीआरसी में दो पार्ट है, एक वीए एक आरसी। सो सबसे पहले तो तुम फोकस करो तुम किस में स्ट्रांग हो। तो मेरा वीए पार्ट थोड़ा स्ट्रांग था, मतलब मेरे को लगता था कि मेरे लिए स्ट्रांग है, तो मैं ना वीए पे ज्यादा फोकस किया। तो वीए पे तुम फोकस कर, फॉर एग्जांपल तुम्हारा वीए स्ट्रांग है तो तुम पहले वीए पे अच्छे कमांड रखो, मतलब वीए में सोचो कि यार 2 3 4 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब कैसे करना है, इसका एक ही लॉजिक है कि तुमको पढ़ के कॉम्प्रीहेंड करके तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें टाइम स्पेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने 2 पैराग्राफ पढ़ा, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ, तो उसके लिए तुमको समझना पड़ेगा कि तुम क्या सोच रहे थे और तुम्हें समझाना क्या चाहता है ऑथर, ठीक है। तो तुम क्या सोचे, तुमने कहाँ पे गलत थिंकिंग किया, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि राम जा रहा है मार्केट, ठीक है, लेकिन तुमको लगा कि नहीं राम जा रहा है खेलने, तो अब यहाँ पे तुम्हारा कॉम्प्रीहेंड में ही गलती था। तो वो चीज तुमको पकड़ना, अच्छा मैंने गलती सोच लिया था, और खुद का एजम्पशंस तो लगाना ही नहीं है वीआरसी में। तो जो दिया रहेगा उसी में से तुमको समझना है और उसी में से आंसर आता है। तो तुम्हें धीरे धीरे करके बहुत प्रैक्टिस करना होगा, तुम्हें बैठना पड़ेगा तुम्हें कि यार मैंने 2 3 पैराग्राफ पढ़ा फिर भी मेरा आंसर गलत हो गया, क्यों हुआ। तो एक बार समझो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कहना चाहता है, क्या पैराग्राफ क्या कहना चाहता है, 2 3 बार पढ़ो, फिर अच्छे से मारो, मतलब तुक्का, जो भी तुक्का मार रहे हो, तुक्का तो नहीं बोलूंगा बट हाँ जो भी कर रहे हो उसको सोचो कि नहीं यार ये तो राइट होगा, उसके बाद भी वो गलत हो रहा है तो फिर सोचो क्यों गलत हो रहा है, उस पर आधा घंटा टाइम स्पेंड करना होगा। तो इनिशियली वीआरसी बहुत टफ लगेगा, बट 1 2 महीने के बाद बहुत इजी लगता है वीआरसी। तो चीजें डिफरेंट होती है, बस यही बोलूंगा, मतलब और कुछ ऐसा तो स्ट्रेटेजी है नहीं। सो आई हैव अ मीटिंग एट, एक मिनट, आई हैव अ मीटिंग एट 7:40। यू गाइस हैव 2 3 more minutes, तो पूछना है पूछ लो। भैया आपके प्रोफेसर कैसे हैं? मतलब वो उनका क्लास हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, बायलैंग्वेज होता है? फुल इंग्लिश में होता है, फुल इंग्लिश में होता है, बिल्कुल हिंदी में नहीं होता है। एंड घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम किसी को नहीं आता यार इंग्लिश, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब बहुत एक्सपर्ट होके आ रहे हैं, मैं भी बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश बोलता हूँ। बस मेक श्योर कि वॉट एवर यू स्पीक विद कॉन्फिडेंट, दैट्स इट। तुम धीरे बोलो, तुम कस के बोलो, फर्क नहीं पड़ता। एंड प्रोफेसर भी बहुत ही आराम से बोलते हैं, बहुत ही चिल आउट होकर बोलते हैं, तो इंग्लिश का मत सोचना। एज अ फ्रेशर मेरे को पता है डर लगता है, मैं भी फ्रेशर ही था तो मेरे को भी लगता था कि यार कैसे बोलूंगा, बट सब हो जाता है यार जब तुम सबके साथ, तुम ऐसे एनवायरनमेंट में हो ना कि सब इंग्लिश ही बोल रहे हैं, तो तुम ऑब्वियसली तुम बोल लोगे, ठीक है। तो इतना टफ नहीं होता है। तो दैट्स व्हाट। भैया आप सेकंड ईयर में ही मतलब कि स्टार्ट कर लिए थे प्रिपरेशन करने का? नहीं नहीं नहीं, थर्ड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर में किया था, बट मैं पढ़ाई नहीं करता था, मैं बस कोचिंग जाता था, पढ़ता नहीं था। मतलब तो वही बात हो गई ना कि मैं स्कूल गया और उसके बाद देखा भी नहीं, तो वैसे मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं थर्ड ईयर में मतलब लास्ट के 6 मंथ्स में जो मैंने मेहनत किया ना, वो मैंने 1.5 साल में मेहनत नहीं किया था। तो मैं तो यही बोलूंगा कि मैंने मेरा 6 महीना का पढ़ाई था। प्लीज सजेस्ट सम गुड सोर्सेस ऑफ LRDI। तो एक हनी सर को फॉलो कर सकते हो इलाइट्स ग्रेड में, ठीक है। और रवि प्रकाश सर को जरूर फॉलो करो, रोधा चैनल है या फिर अन अकेडमी चैनल है, ये 2 चैनल है। तो मेरा तो यही दोनों से हो गया, मतलब इनफ है यार हनी सर का। और हनी सर बोलते हैं, गौरव सर, सॉरी गौरव सर, गौरव सर इलाइट्स ग्रेड में पढ़ाते हैं और रवि प्रकाश अन अकेडमी में पढ़ाते हैं। अब दोनों का फ्री कंटेंट भी, अगर तुम्हारे पास नहीं है, मतलब उतना बजट भी नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, तुम फ्री कंटेंट देख के भी निकाल सकते हो। यूट्यूब में बहुत कंटेंट पड़े हैं दोनों के। ये और कोई सजेशन, हैबिटेट कैसा लग रहा है वैसे? हाँ अच्छा है, मतलब एक फैमिली टाइप हो सकता है, मतलब हम लोग इतना फैमिली टाइप रहते हैं, बातचीत करते हैं, डे टू डे में क्या करते हैं वे सब।
अच्छा ही है, गुड रिव्यू। मेरा भी मेरी तरफ से हाँ बताओ बताओ। मेरी तरफ से भी सही है भैया, मैं ये बोला। हाँ मतलब तुम लोग एक ऐसा कनेक्शन बन रहा है, एक ऐसा पीयर ग्रुप बन रहा है, कम्युनिटी बन रहा है जहाँ पे तुम लोग पर्सनल टेक्स्ट भी नहीं कर सकते, जिससे डिस्टरबेंस नहीं आता तुम लोग को, एंड तुम लोग ग्रुप में ही बात करोगे, एक प्लस पॉइंट है। सेकेंड कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं IIM में तो तुम लोग को पहले पता चल जा रहा है कि क्या करके आना चाहिए या क्या आगे क्या करना चाहिए या फिर कैसे क्या करना, मतलब एक डायरेक्शन मिल रहा है तुम लोग को, तो एक प्लस पॉइंट तो है मेरे हिसाब से। अब भैया एक रिक्वेस्ट है, हम्म, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ एक्चुअली। आप अगर ले सकते हैं तो महीना में एक लाइव, अगर इफ पॉसिबल आपके पास टाइम हो तब, मैं बोल रहा हूँ। लाइव जैसे अभी सेशन चल रहा है ना, तो उस तरह से। यूट्यूब में? नहीं भैया, हैबिटेट पे कहीं भी कोई प्लेटफॉर्म पे। हैबिटेट पे लाइव कैसे आएंगे? हैबिटेट में ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है। जैसे अभी हम लोग कॉलिंग हो रहा है ना भैया, हम्म, चलेगा। हाँ ये वाला तो मैं कर ही रहा हूँ ना, ये वाला मैं अब टारगेट रखा हूँ कि हर हफ्ते एक कर लूंगा, ठीक है। तो मे भी फैबुलस है। हाँ हर सैटरडे 7 बजे करते हैं फिर, तो तुम लोग अपना अपडेट दे देना कि मैंने ये किया था, एंड यू गाइस डोंट नीड टू से मी भैया बिकॉज आई एम 22 यार, तो ऐसा कुछ नहीं, यू कैन कॉल मी अंशु। तुम लोग हार्डली मेरे से हार्डली मतलब 1 साल छोटे हो गए हार्डली, उससे ज्यादा तो नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लोग 28 29 30 वाले बंदे भी है, तो हम लोग किसी को भैया नहीं बोलते हैं यहाँ पे, भैया दीदी ऐसा कुछ हो रही है। सो मतलब नहीं मैं भी भैया, हम तो फर्स्ट ईयर में ही है, मतलब अभी। हाँ इट्स ओके, यू कैन कॉल मी अंशु, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया, ऐसे ऐसे कैसे हम बोलेंगे, भैया ही बोलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, अब मतलब तुम्हारे ऊपर है, मैंने अपना बता दिया, बाकी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, सो लेट्स मीट ऑफ नेक्स्ट लेट्स मीट नेक्स्ट सैटरडे, एंड एक एक रिक्वेस्ट है तुम सबसे, जो भी ये वीडियो मतलब जो भी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, डू गिव योर फीडबैक फॉर हैबिटेट सो दैट दिस स्टार्टअप कैन इम्प्रूव, एंड मैं भी लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में, सो यू गाइज कैन जस्ट गिव योर रेटिंग्स, ऑनेस्ट रेटिंग, मेरे तरफ से कुछ नहीं है कि 4 2 या 5, तो तुम्हारी मर्जी जितना देना है। डू गिव सम सजेशंस, डू गिव माय फीडबैक, उसमें मेरा फीडबैक भी देना कि हाउ यू फीलिंग विद मी, एंड जो भी तुम्हें फील कर रहा है तुम, यू कैन जस्ट comment on that play store का app, ठीक है, I will be sharing that this thing, and yeah YouTube का भी do try to share with your friends, जो भी cat aspirant है, जो भी तुम्हारे कॉलेज में है, make sure that they know Anshu Chaudhary vlogs. So yeah, any other questions or should I just drop off? That's it, done. मिले फिर next week, and we'll be connecting with the we'll be connected with the chats, so don't worry that I won't be available. I am available in chats all the time, but for the meeting, and this is a free meeting, so ये हफ्ते में एक बार मैं जरूर किया करूँ. So do like this video, I will be uploading maybe today or tomorrow, and अपडेट देना, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत इजीली हो जाएगा सबको, टफ नहीं है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट, कीप शाइन। थैंक यू भैया। रेटिंग जरूर दे देना, मैं शेयर करता हूँ, ठीक है, ओके सर। ऑल द बेस्ट, ओके ओके, थैंक यू। बाय। बाय भैया। बाय बाय।